एक प्लेग्राउंड जो कि तकरीबन मुझे लगता है कि एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, और लाइक ये डे नाइट 24 आवर एक्टिव होता है, जब भी आप चाहो तब खेल सकते हो। बाकी हम फिलहाल गेट पर आ गए हैं। warnings for land. So the technology is there, it is reaching up to an administrative authority, but does it still reach to the common man? The question is not true, because the system what is developed for now for landscape, it's not a complete early warning system, it's still a forecast system. So the technology is there, but we have to make the connection between the two. Where the forecast it needs to be made into a complete early warning system. We are progressing towards a modern architecture, forgetting our traditional and vulnerable architecture. As a state, Uttarakhand, as we know, it's a vulnerable state these days, right? In the terms of natural disasters. Disasters like flash floods, okay, like landslides, cloud bursts, these are common these days. And we have been like doing all this with playing with nature. How we are playing with nature with no code, no BIS, without code, we are constructing day by day, right? And filling our catch basins with these waste materials, which we call like developing our countries, these materials which are like renewing these days. What we are doing as an architectural practitioner, we say as a teacher, we say we have to be rooted with our vernacular and traditional techniques. Till 20 kilometers beyond the town, you will not find any place which is devoid of houses or anything. And this problem becomes, I would say, manifold. The disaster level exponentially multiplies when this thing gets transposed to mountains or hills. So as I was giving the example of my hometown Nainital, वहाँ पर आज से करीब 30 years पहले more than double-story structures are not allowed, and there was a strict legal implication, strict legal action used to take place against defaulters. अगर आपने अपना जो घर का मैप है, if it is showing anything more than 2 stories, it is bound to get rejected. However, if you go there today, there are so many structures which are beyond 4 stories, Leopard 2. So this can be called, this can be attributed to 2 things. One is awareness. So either the locals are not aware, or the civil administration is not aware. And second is the laxity of the civil administration, or the, I would say, so-called the governance. Bring out is, as is already covered, the norms are in place, the planning and everything is in place. However, one drawback in our system, I would like to point out, is the system of L1 bidding. Whenever a contract or a project which is assigned, we go for the lowest bidder. Now, apart from the structures which have to be the structural costs and other costs are there are certain hidden costs, like is brought out the dumping ground, the dumping of the debris and the construction waste. So these are all hidden costs, which a contractor would like to profit from, making out in these terms of in his profit margins. So rather than going for a lower L1 bidding system, we should go for the most economic, quality compliant project allocation. It's not so that the system is L1, that's fine. But generally, what companies are doing, instead of instead of 100%, they are quoting at minus 30%. So just to get the tender. Exactly, sir. So Himalaya. As well as we know in the northwestern part of the Himalaya particularly we have the permafrost. Now it is also thawing. We have seen that many places it is disturbing even the road construction. So do we have any climate policy regarding this? And connecting with the same, now we are also facing particularly in the western Ghat regions, we have seen the many landslide activity due to this monsoon intensification.
ताली बजा दो जोर की। मैं तो करवाने लग रहा, धीरे धीरे करवा रहा मैं। स्लो एंड डीप। पकड़ के ले गई। जिन्होंने कहा था सर्टिफिकेट से तारी मालिक को मिला मैं क्या कर चीनी का तो चार चीनी तो फिर भी ठीक है, कॉफी बहुत महंगी है। अरे वो भी चार चीनी का हम खरीद नहीं रागिता होगा, चार तो अक्षय नायक, बेचारा ने देखा कॉफी का पहुंच गया। विजय महतो, मेरा बनवा सके। Today has been a truly enriching and purposeful engagement. From the inspiring inaugural session in the august presence of the Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami ji, our distinguished guests, Bhagwati Raghav ji Bhai Sahab, our Director Professor K.K. Pant, Deputy Director UP Singh Sahab, my faculty colleagues, researchers, officers from NCRF, NDRF, armed forces, students and friends. This workshop has reaffirmed one central truth, that disaster resilience is not an isolated technical challenge. सही बात है। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं फिर आपसे रोज। परफेक्ट चीज़ है, लाइफ एकदम मतलब वो हो जाती है, एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। 6 महीने बाद मैं देखूंगा ना तो मेरे को बड़ा मजा आएगा ये चीज़। स्टार्ट करा मैंने तो कहाँ पहुँच गया हूँ। शॉप खत्म करके हम आ चुके हैं मार्केट, तो कुछ काम है मार्केट में, वो कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं रूम पे। बाकी आज का दिन तो बहुत सही रहा, देखते हैं। तो आज करनी थी नहीं वैसे, तो जल्दी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, एक्चुअली कल फास्ट है तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वो ले ली है, और बाकी चलते हैं रूम पे। मौसम ज़्यादा अच्छा है नहीं, धूप आ रखी है पर मौसम ज़्यादा ठीक नहीं है, और अगर कुछ खाने पीने का ऐसे तो भूख भी नहीं थी। चलते हैं फिर रूम पे। कभी कभी जो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं ना, ये वाले जो मैं जैसे अभी एक वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ, ये चीज़ें जो मतलब सिखाती है ना ज़िंदगी में, वो स्कूल कॉलेज के किताबों में कभी नहीं मिलती है। तो अगर आपको मौका कभी लाइफ में मिले तो यू शुड अटेंड दिस। गाइस, आई एम बैक टू द रूम फाइनली। तो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर मिलते। गाइस, फिलहाल वीडियो तो अपलोड कर दी है मैंने, तो मैं जहाँ थोड़ा देर बहुत थक गया हूँ तो रेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं बाकी क्या होता है। गाइस, फिलहाल आ करके रेस्ट तो हमने कर लिया है, अभी जस्ट उठे हैं। बाकी अभी डिनर करने का वक्त हो रहा है, तो चलते हैं डिनर कर लेते हैं। और यार कसम से आज का जो एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। दिस वाज लिटरली कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें होते हैं ना कि लाइक अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब बाहर जाते हो तो चीज़ों को सीखते हो। और आई पर्सनली फेल्ट दैट कि वो जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ मिला। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को बहुत करीबी से देखने के बाद पता चलता है कि हाँ किस लेवल पे आप हो और आपको कहाँ पहुँचना है। और लाइक लिटरली एक मोटिवेशन की तरह काम करता है ये चीज़ें। हाँ, ऑफ कोर्स नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो दो मेरे एकेडमिक्स में से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, पर एज अ ह्यूमन बीइंग ये चीज़ें सीखना तो ज़रूरी है ना,
क्योंकि बचने के लिए, खुद के बचाव के लिए भी ज़रूरी है। और ऐसे तो लाइक अगर कहीं पे कुछ हो रहा है ऐसा और आपको मौका मिल रहा है किसी को, किसी की जान बचाने की या फिर कभी किसी को रेस्क्यू करने का, तो यू कैन हेल्प हिम, हर जो भी हो। तो इन चीज़ों में ये बहुत काम आती है। बाकी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इसका, और पूरे दिन मस्ती करा मैंने बाहर में, मौज था एकदम नेक्स्ट लेवल, और मोटिवेशन भी मिला आगे बढ़ने का। लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो विद दिस होप आज चलते हैं अभी और डिनर करते हैं, बाकी देखते हैं आकर के। कहीं ना कहीं एजुकेशन का आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले है कि एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और कुछ चीज़ें लाइफ में होती है जो कि एक एथिक्स होती है, जो कि एक क्या बोलते हैं आप, हम अपने एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग से सीखते हो। वो चीज़ें आपको बुक कभी भी नहीं सिखा सकती है, कभी भी नहीं, लाइक लिटरली कभी भी नहीं। वो चीज़ें आप पर्सनली जब एक्सपोजर लोगे बाहर की एनवायरनमेंट का, बाहर के लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलोगे, लोगों की बातें सुनोगे, सीखोगे, तभी जा कर के आपको उस चीज़ की एक्सपोजर मिलेगी, उस चीज़ आपके दिमाग में जाके बैठेगी और आप वैसे ही बिहेव करोगे। और उस गैप को फुलफिल करता है ये कॉन्वोकेशंस या जो भी ये वर्कशॉप्स होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली उन चीज़ों को ही सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 90% जो उन्होंने बातें करी, वो मैं कहीं न कहीं कहता हूँ, जब एक्चुअली उनका सेशन चल रहा था तो बहुत कुछ मुझे समझ आया, बहुत कुछ नहीं भी आया। पर जो एक्सपोज़र था ना वहाँ का, वो जो पॉजिटिविटी, वहाँ जो वाइब थी, वो नेक्स्ट लेवल था। और वो एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपको कभी भी लाइफ में मौका मिले तो आप ज़रूर जाना, चाहे कुछ भी हो। गाइस फिलहाल रात तो बहुत हो गई है और मैं आउटरो देना भूल गया था क्योंकि मैं सो गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए राधे राधे।